Good morning, my dear students. Myself Ranjana Verma from St. Michael's Academy. Today I am going to teach class 5th science. So we will start chapter 2, the skeletal system. All the bones of the body taken together form the skeletal system. So we will understand why this picture here is the picture of a skeletal system. We will understand one by one. It is a skull. This is the shoulder bone. This is the breastbone. This is the backbone. This is the hip bone. This is kneecap. And this is collarbones. And this is ribs. This is bone of the wrist, palm and finger. Bone of legs. This is bone of the ankle, foot and toes. फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, इसका फंक्शन क्या होता है स्केलेटल सिस्टम का? इट हेल्प अस टू मूव सम पार्ट्स ऑफ इट, प्रोटेक्ट टू इंटरनल organs. फॉर एग्जाम्पल द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. इट फॉर्म्स ए फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी, गिव्स टू इट शेप एंड सपोर्ट इट. ये हमारे बॉडी को क्या करता है? सपोर्ट देता है. स्कल, ये स्कल किस चीज़ को सपोर्ट करता है? हमारे बोन को क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट बोन आर मेड ऑफ. बोन्स आर नॉट लाइक हार्ड स्टिक्स मेड ऑफ कैल्शियम एंड phosphorus. They do have lot of calcium and phosphorus which makes them harder than other parts of the body. But they are not dead like hair and nails. Bones are of many types. Long bones, short bones, and flat bones. Flat bones and irregular bones. So we will discuss one by one. Long bones, the bones of the legs, arms, of fingers and toes. And the short bones, example of long bones are legs, arms, fingers and toes. Example of short bones are wrist and ankle. Example of flat bones are ribs, breastbones and skull. Irregular bones, the bones of spine. Okay. Now we will understand about one by one the skull. The skull is made up of 22 bones, including the bones that give the face its shape. These are some of the hardest bones of the body. They protect the brain and support the parts of face. Only the lower jaw can move, allowing us to eat and speak. Now we will learn about the spine. The spine, here is the picture of spine. The spine is a long line of 33 bones. इसमें कितने bones होते हैं? 33. That runs from the base of skull down to neck and back, right to the hips. The spine supports the head and allows it to move. It helps us to sit, stand, walk, twist, lie down, etc. It holds the ribs in the place and protects the heart and lungs. The bones of spine are called vertebrae. हम इस बोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा बोलते हैं. दिस इज द पिक्चर ऑफ वर्टिब्रा. द बोन्स ऑफ सो द स्पाइन इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्टिब्रा. द वर्टिब्रा आर हॉलो एट द सेंटर लाइक बेड्स. यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो पिक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हॉलो पार्ट्स है. एंड थ्रू द हॉलो स्पेस ऑफ दिस बोन्स रन्स ए बंच ऑफ नर्व्स कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड. यहाँ से बहुत सारे नर्व्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं?
Spinal cord. The spinal cords acts like assistant of brain receiving and passing on the message. क्या इसका फंक्शन क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड्स का? ये ब्रेन ये मैसेज को क्या करता है, रिसीव करता है और पास करता है हमारे ऑर्गन पार्ट्स को. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रिब केज. The rib cage is formed by 12 pairs of ribs in the vertebra in the upper part of the back and the breastbone. 10 pair of ribs are attached to the spine and breastbone. The last 2 pairs are joined only to spine. These are called floating ribs. These are called floating ribs. इसमें कितने पेयर्स होते हैं रिब केज में? 12 पेयर्स होते हैं और इसमें 10 पेयर्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं. 10 द रिब्स आर फ्लैट कर्व फ्लेक्सिबल बोन्स दैट मूव आउटवर्ड्स व्हेन वी इनहेल टू लेफ्ट द चेस्ट एक्सपैंड. 10 pairs of ribs are attached to the spine and the breastbone, and the last two pairs are joined only to the spine. These are called floating ribs. This is the structure of arms. So we will understand. The upper arm has one long bone, while the forearm has two. The bones of the upper arm has forearm are joined at the elbow. ये किसी से join होता है? elbow से. And how it is the arm attached to the rest of the body. So अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं. दिस इज द शोल्डर बोन्स. दिस इज द बोन ऑफ अपर आर्म. दिस इज द एल्बो बोन्स. दिस इज द बोन ऑफ रिस्ट. ये यहाँ पे पिक्चर में क्या दिया हुआ है? दिस इज द बोन ऑफ रिस्ट. दिस इज द बोन ऑफ फोर आर्म. ये फोर आर्म का ये है बोन्स है. दिस इज द बोन्स ऑफ हैंड. हम लोग ईच फिंगर हैज 3 बोन्स. ये जो हम लोग फिंगर्स देख रहे हैं इसमें 3 बोन्स होते हैं. ये जो आप ज्वाइंट देख रहे हो ये क्या है? ये 3 बोन्स होते हैं ज्वाइंट. और इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? नकल्स. इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ईच फिंगर हैज 3 बोन्स ज्वाइंट एट द नकल्स. ये ज्वाइंट किस चीज से होता है? ये नकल्स. द थंब हैज ओनली 2 बोन्स. ओनली थंब में कितने बोन्स होते हैं? ओनली थंब में कितने बोन्स होते हैं? 2 बोन्स होते हैं. ओके चिल्ड्रन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लेग्स. फर्स्ट वी विल नो विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी. ये हमारे बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट बोन इस हम लोग कहाँ पाते हैं? लेग्स में हम पाया जाता है. एट द अपर एंड इट फिट्स इनटू हॉलो इन द हिप बोन. ये क्या है? हिप बोन से ये अटैच होता है विच इज अटैच टू द वर्टिब्रल कॉलम. द लोअर एंड ऑफ द थाई बोन्स ज्वाइन 2 बोन्स. ये और ये 2 बोन्स से अटैच होता है. इस ज्वाइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं नी कैप. 2 बोन्स ऑफ द लेग एट द नी विच हैज कवरिंग बोन कॉल्ड नी कैप. और ये क्या है? थाई बोन है. और ये क्या है? बोन्स ऑफ लेग. ये क्या है? द बोन्स ऑफ द फुट आर ज्वाइंट टू द बोन्स ऑफ द टोज. लाइक द फिंगर द टोज हैव 3 बोन्स. जैसे हम लोग बताए थे कि आर्म्स में कितने बोन्स होते हैं? आर्म्स में हर एक फिंगर्स में कितने बोन्स होते हैं? 3 बताए थे. वैसे ही पैर में भी हम लोग को कितने बोन्स पाए जाते हैं? 3. बट इन टोज यानी कि अंगूठे में ओनली इट हैज 2 बोन्स. इसमें सिर्फ हम लोग को कितना बोन्स होता है? 2 बोन्स. और इन सारे फिंगर्स में 3 बोन्स. Please note down homework. Draw the picture of all the diagram which I have taught in this chapter. First, the skeletal system, a skull. Then we will draw a spine, vertebra, and label its parts also. And the arms, the legs. Okay. Thank you.